السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں دیکھیے، ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام 2025 کے لیے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں گے۔ اس چینل میں آپ کو سارے سبجیکٹ کی تیاری کرائی جائے گی اور اردو کی اسپیشل کلاس آپ کو دیا جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قمر جہاں جو ہے اس کے بارے میں تیاری کراؤں گا، اور قمر جہاں سے ریلیٹڈ ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام میں جتنے بھی پرشن پوچھے جاتے ہیں سارے کے سارے پرشنوں کو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی قمر جہاں سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوشچنس بنیں گے نا، سارے کے سارے کوشچنس کو میں آپ کو پڑھا دے گا، ٹھیک ہے۔ قمر جہاں کے بارے میں پڑھانے سے پہلے میں آپ کو قمر جہاں کی تعارف پہلے کراؤں گا، ٹھیک ہے۔ تعارف کرا دوں گا، اس کے بعد میں جو کوشچنس بنیں گے وہ کوشچن میں آپ کو بعد میں کراؤں گا۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، قمر جہاں کا شمار بہار کے ایسے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جو خواتین کی ترجمانی کرتی ہے۔ قمر جہاں کی پیدائش سمستی پور ضلع کے بزرگدوار قصبہ میں ہوئی، اور اس کہاں پر ہوئی؟ یہ جو سمستی پور ضلع ہے اس کو آپ دھیان میں رکھیے گا کہ قمر جہاں کی جو پیدائش ہے وہ سمستی پور ضلع میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور 1951 عیسوی میں ہوئی، اور یہی ان کا آبائی وطن بھی ہے۔ یعنی اس کا جو آبائی وطن سمجھا جاتا ہے وہ سمستی پور کو ہی سمجھا جاتا ہے، یعنی سمستی پور ضلع کے بزرگدوار میں قصبہ میں جو ہوئی، تو یہ جو سمستی پور ہے ان کا آبائی کا جو وطن ہے اسی کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قمر جہاں کے والد کا نام سید عطا الحق تھا، اس کو بھی آپ دھیان میں رکھیں گے۔ جو بھی امپورٹینس ہے اسے آپ دھیان میں رکھیں گے، کیونکہ آگے جو سوال بنیں گے تو یہیں سے بنیں گے۔ تو قمر جہاں کے والد کا نام سید عطا الحق ہیں، اور اس کے بعد میں گھر کے لوگ علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے۔ یعنی اس کے جو پورے گھر کے اہل و عیال ہیں سبھی کے سبھی پڑھائی میں، علم و ادب میں بہت ہی زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئے۔ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہاں آگے؟ قمر جہاں پٹنہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا۔ اس کو آپ نوٹ کریں گے کہ جو پٹنہ آنے کے بعد پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا اور پی ایچ ڈی کیا۔ تو کس چیز سے کیا پی ایچ ڈی اور ایم اے؟ تو ایم اے بھی اردو سے کیا اور پی ایچ ڈی بھی اردو سے ہی کیا۔ کہاں سے؟ پٹنہ یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں یہاں دھیان دیجئے کہ اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے کی وجہ سے طالب علم کے زمانے سے ہی افسانہ لکھنے لگے۔ کب سے؟ طالب علم کی زبانی سے ہی انہوں نے افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ اور آپ کی پہلی کہانی جنون وفا ہے۔ تو وہ جو افسانہ لکھتے تھے تو افسانہ کا جو پہلی کہانی جو ان کا ہے وہ ہے آپ کا جنون وفا، ٹھیک ہے، جو ماہ نامہ صبح 9 پٹنہ سے شائع ہوا۔ اور قمر جہاں نے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز سندرونی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے کیا، اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر اردو کے عہدے تک پہنچی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کے متعدد تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے افسانہ کی کتاب تو لکھی، تنقیدی مطلب کہ افسانہ کی کتاب تو انہوں نے لکھی ہی، ساتھ ساتھ میں تنقیدی والا مضامین بھی انہوں نے بہت سارا لکھا۔ تدریسی خدمات اور تصنیفی مصروفیات ایک ساتھ جاری ہوئی، ٹھیک ہے۔ قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ یعنی قمر جہاں کی جو تصنیف کردہ کتابیں ہیں جو افسانہ سے ریلیٹڈ ہے تو وہ 3 ہے۔ کتنا ہے؟ 3 ہے۔ ایک ہے آپ کا چارہ گر، اور جو کہ 1983 میں شائع ہوا، اور ایک ہے اجنبی چہرے، اور ایک ہے آپ کا جو کہ 1991 میں جو کہ شائع ہو چکے ہیں۔ اور اردو ایک افسانوی مجموعہ یاد نگر زیر اشاعت ہیں، یہ بھی ایک مجموعہ کا نام ہے۔ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری معیار، کلام عبداللہ حافظ مشکپوری تحقیقی و تدوین کلام اور حرف آگہی آپ کے تنقیدی تصانیف ہیں۔ تو یہ جو نام بولا ہوں میں نے یہ اس کا تنقیدی والا کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ قلمی سفر ابھی جاری ہے۔ اب آئیے معروضی سوالات مع جوابات، یعنی معروضی سوال کو ہم لوگ حل کر لیتے ہیں، آبجیکٹیو جو سوال بنیں گے اس پر وہ حل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ قمر جہاں کے تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ قمر جہاں کا تعلق صوبہ بہار کے آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ وہ سمستی پور کے مطلب کہ رہنے والے تھے، اور اس کا آبائی وطن سمستی پور کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے قمر جہاں؟ تو سمستی پور ضلع سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ اس کے پاپا جی کا نام کیا ہے؟ تو آپ کو آپشن نمبر با بالکل رائٹ ہو جائے گا، یعنی سید عطا الحق، ٹھیک ہے، یہ بالکل رائٹ ہو جائے گا۔
अगला सवाल है कि निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? कौन है यहाँ पर नहीं हो गया, कौन है होगा। तो निसाब में शामिल यानी निसाब में शामिल का मतलब है कि दरख्शा उर्दू के क्लास 10 के दरख्शा उर्दू में जो कटी हुई शाख एक ये हैं चैप्टर हैं, तो उसके अफसाना निगार कौन है यानी उस कहानी को कौन लिखा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर जिम बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कमर जहां है। कौन है? कमर जहां है। अगला सवाल आपके सामने में कि कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, यानी कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी के जो कि उस्ताद थे। अगला सवाल आपके सामने में कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए, यानी एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट, यानी चारागिर। चारागिर जो है ये आपका जो है अफसाना की किताब है जो कि कमर जहां की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई। तो आपको पता है कि कमर जहां की पैदाइश आपको यहाँ पर है कि कमर जहां की पैदाइश जो है कि आपको 1951 से 52 में हुई, यानी इसका डेट कुछ फिक्स नहीं है। 1951 से 52 ऐसा मतलब कि में हुई, इसका कोई निर्धारित समय नहीं, इसलिए 1951 और 1952 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। तो कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने में कि कमर जहां की पैदाइश ताल्लुक़ सूबा बिहार के किस ज़िला से हैं। तो कमर जहां का पैदाइश ताल्लुक़ सूबा बिहार के समस्तीपुर ज़िला से हैं, आपको मैंने अभी बताया है ना। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो कमर जहां के अफसाना जो है कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। निसाब हमारे निसाब का मतलब है कि दरख्शा उर्दू में जो कटी हुई शाख जो चैप्टर है, तो वो चैप्टर जो है कि कमर जहां के निसाब में शामिल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि आपका कटी हुई शाख बिल्कुल राइट होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे। तो भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे, बात खत्म है ना, आपने पढ़ा है। तो जो आपको मैंने ऊपर पढ़ाया तो उसी से ये सभी सवाल बने हैं। ठीक है, अगला इसको समझने के लिए आप पढ़िए कमर जहां की हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। अगर जो कि कमर जहां के हालात ज़िंदगी के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं कि कमर जहां की हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए, तो उसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए कि डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश जो है कि आपको 1951 में समस्तीपुर जिला के मर्दम खैज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई। ठीक है, इसीलिए वो जो गांव है उनका आबाई वतन समझना चाहिए। वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, यानी कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था और उनका खानदान गांव में तालीम याफ्ता समझा जाता था, यानी उसके पूरे खानदान को मतलब कि तालीम याफ्ता समझा जाता था उसके गांव में। ठीक है, घर के तमाम अफराद इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना गए और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया और PhD भी किया। तालिब इल्मी के ज़माने से ही उर्दू अदब से फितरी लगाव था, इसलिए जो है कि अफसाना लिखना शुरू कर दिया। वो कमर जहां के हालात ज़िंदगी पर लिखने के लिए कहेगा, पूछेगा, तो आप इतना जो भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने उसकी पैदाइश कब है, उसके अम्मी का नाम, उसके अब्बू का नाम, कहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया, कहाँ तक पढ़ाई किया, कहाँ पर पढ़ाया, हर एक चीज़ आप बयान कर देंगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब अगला है कि कमर जहां की तसानीफ की फहरिस्त मौजू के एतबार से लिखिए। तो यहाँ पर है कि कमर जहां एक अफसाना निगार के साथ एक तनकीद निगार भी हैं। आपको पता है कि वो अफसाना भी लिखते थे, साथ साथ में तनकीदी भी करते थे। चुनांचे उनकी तसानीफ अदब के दोनों मैदानों में हैं। उनकी अफसानवी निगार शात में 3 अफसानवी मजमुए हैं जो दर्ज झेल हैं, यानी वो चारागिर जो कि शात किया था, अजनबी चेहरे और याद नगर ज़ेर शात कमर जहां की तनकीदी तसानीफ दर्ज झेल हैं। यानी ये सभी की सभी आपका अफसाने किताब है और आगे जो बयान करेंगे अभी वो हो जाएगा आपका तनकीदी वाला किताब, यानी अख्तर शेरानी की जिनसे और उमानी शायरी, मेयार कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकीपुरी और हर्फ आगही वगैरह कलमी सफ़र अभी जारी है। तो ये उनका तनकीदी वाला किताब है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है कि कमर जहां के तालीम और तदरीस के बारे में मुख्तसरन बयान कीजिए, यानी तालीम और तदरीस कहाँ पर पढ़ा और कहाँ पर पढ़ाया, दोनों के बारे में मुख्तसर बयान करना है। तो देखिए कमर जहां की तालीम उनके आबाई गांव बुजुर्ग द्वार में हुई, उसके बाद वो पटना चले गए और वहां पर पटना यूनिवर्सिटी से महिला कॉलेज में दाखिला लिया। ठीक है, कहाँ पर महिला कॉलेज में दाखिला लिया और इंटर ऑनर्स और उर्दू में MA किया और PhD भी वहीं से किया। उसके बाद सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर में उर्दू लेक्चरर की हैसियत से आपका तकर्रुर जो कि हुआ। यहीं से उनके तदरीसी करियर का आगाज समझना चाहिए।
तो कहाँ कहाँ पर पढ़ा, कहाँ कहाँ पर पढ़ाना शुरू किया, समझ में आया आपको। चलिए अब देखिए कि फिर आपका तबादला सुंदरवती कॉलेज से भागलपुर यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में हो गया, ठीक है। वहाँ से जो कि ट्रांसफ़र करके जो कि भागलपुर यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में हो गया, और तरक्की करके कमर जहाँ सदर शोबा उर्दू क्या है भैया, गलत टाइपिंग हो गए। तदरीसी जिम्मेदारियों के साथ आप अफसाना निगारी भी करते थे, यानी तदरीसी मतलब दर्स भी देते थे, मतलब क्लास में पढ़ाते भी थे और साथ साथ में अफसाना निगारी भी करते थे, अफसाना की किताब भी लिखते थे। और आपकी कई तनकीदी तसानीफ भी हैं, जैसे कि यानी तदरीसी व तख्लीकी अमल दोनों साथ जारी है, साथ में पढ़ाते भी थे और साथ में जो कि तनकीदी भी करते थे, अफसाना भी करते थे। उर्दू के किसी 5 ख़वातीन अफसाना निगारों के नाम लिखिए, यानी आपको यहाँ पर उर्दू के किसी भी 5 ख़वातीन अफसाना निगारों के नाम लिखिए, तो सब महिलाओं के नाम लिखना है। तो एक है शकील अख्तर, जो कि अफसाना निगारों में इनका शुमार होता है, कमर जहाँ तो है ही, उसके बाद में शमीम अफ़ज़ा कमर, ये भी आपका उर्दू के जो अफसाना निगार हैं उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद में आसमत चुग़ताई और क़िरतुल ऐन हैदर, ये हैं आपका, ठीक है। मैंने आपको कमर जहाँ के बारे में बेहतर तरीके से समझा दिया, और कमर जहाँ से जितने भी पॉइंट्स बनते थे उन सारे पॉइंट्स को और उन सारे सवालात को मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा है क्लास करके। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें हमेशा और डेली क्लास करें। और आप हमारा नंबर 8226928812 को नोट करके रखें, यानी इस नंबर को नोट करके रखें। और अगर आपको उर्दू का नोट्स चाहिए डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।